Hi everyone, this is Akshay Nagpal and I'm here on this channel on behalf of Commerce Edu Club, and I'm also a CA final student. Like, my results are awaited for Group 1. I just gave my exams in January and I'm already cleared with second group of CA final. And today we are here for studying for revising section number 181 to section number 183 of Companies Act 2013, which are about the contributions to various, like, as you can see, for section number 181, charitable funds, political contribution, and third is about national defense funds and other funds. So we are going to revise through this chart that I have already made for you all. I have compiled all these three sections in 2 or 3 sheets along with examples of ICI study material for May 21. And so yeah, maybe let's begin. Cool. So yeah, section number 181. It is about the contribution to bona fide charitable funds. And section number 182 is about contributions to political parties, and section number 183 is about contribution to national defense funds or any other funds approved by central government. All right, so we will study one by one. All right, like for section number 181, then 182, and then 183, and then after that we will compile it and we will revise comparatively. All right. So first is section number 181. This is a very short section and it talks about majorly one thing, that is the limit. There is a particular limit of 5% of average net profits of for the 3 immediate previous preceding financial years. If this limit is not contravened, then there is no need for special resolution. The only need here is the normal resolution of board of directors, either at a general meeting or by resolution, by circulation. Okay, so yeah, as you can see, the limit here is 5% of average net profits of the company for the 3 immediately preceding financial years. And if this limit is contravened, then a special resolution will be required. All right. Second part is who can exercise the power? The board of directors can exercise this power either at a board meeting or by circulation. Okay, so this is the only major thing in this section. We will take example here. Wait a second. Yeah, this is example. This is from the ICI study material only. All right. Yep. So the board of directors of a very well limited is contributing every year to a charitable organization a sum of rupees 60,000. In a particular year, the company suffered losses, and the directors are contemplating to contribute to the said amount in spite of the losses. In this connection, state whether the directors can do so. Basically, इन्होंने बोला ये है कि एक कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी है, वो 60,000 रुपीज डोनेट करना चाहती है, लेकिन उस साल में उसको लॉसेस हुए हैं. बट हमारा सेक्शन क्या कहता है कि 5% लिमिट है हमारी. 5% अगर लिमिट हम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम फिर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ऑल राइट. तो बेसिकली इसमें 5% वाले को ज्यादा महत्व देंगे हम. 5% का महत्व देने का मतलब क्या हुआ? 5% महत्व देने का मतलब ये हुआ कि जो पिछले 3 साल हैं, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 60,000 रुपीज हम इस साल डोनेट कर रहे हैं, तो पिछले 3 सालों में जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया होगा उस कंपनी ने, उसका एवरेज करके अगर 5% से कम बन रहा है तो सिर्फ हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा. बोर्ड रेजोल्यूशन इधर एट अ बोर्ड मीटिंग और बाय सर्कुलेशन, इन दोनों में से करके आपका हो जाएगा. और अगर उससे लिमिट का इंक्रीज होता है तो लिमिट का अगर इंक्रीज होता है तो उससे कोई मतलब फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन साथ में जाएगा जो कि मेंबर से पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा. ऑलराइट. तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं एक बार. अंडर सेक्शन नंबर 181 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज ऑथराइज्ड to contribute to bona fide charitable and other funds. However, in case the aggregate amount of such contribution in any financial year exceeds 5% of its average not net profits for the 3 immediate preceding financial year, prior permission of the
company in general meeting shall be required. वही वाली बात बोली है इन्होंने. The section does not make it mandatory for the company to have profits for making a charitable contribution in any financial year, as the amount of donation is restricted to the average of immediate preceding 3 years profit. It is possible for the company suffering a loss to make a contribution provided it is made to a bona fide charitable trust. इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात ये बोली है कि अगर इवन दो इस साल में अगर हमारा लॉसेस हुआ है, पिछले 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका एवरेज में प्रॉफिट जो है वो 5% से, मतलब जो 60,000 रुपये है वो 5% की लिमिट में अगर आ रहा है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की नीड होगी. अदरवाइज आपका ज्यादा करने की नीड हो सकती है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की नीड हो सकती है. इन द प्रेजेंट केस, इवन दो द कंपनी हैज इंकर्ड अ लॉस, it can contribute to the charitable fund only if it is a bona fide charitable fund and the amount is up to the 5% of average of the immediate preceding 3 years profit. In case contribution exceeds the limit, the prior approval of members must be taken at a general meeting of the company. इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कहीं पे भी करी, तो आई गेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी इनफ होएगा इस आंसर के अकॉर्डिंग. बट लेट मी सी 1 सेकेंड. सेक्शन नंबर 181 के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन ही होना चाहिए एज पर द केस लॉ. स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 1969. बट इसको मैं कंफर्म कर दूंगा आपके लिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगा या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जाएगा इफ द लिमिट इंक्रीजेस. ऑलराइट, वो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 182. ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन होगा हमारा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर. इसमें कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई. एज यू कैन सी देयर इज नो पर्टिकुलर लिमिट इन दिस केस एंड द कंपनी नॉट एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट. इसके अंदर बताया गया है कि एक गवर्नमेंट कंपनी होती है और एक कंपनी जो 3 साल से 3 साल से कम एग्जिस्टेंस में आई हो, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स कोई भी, एज यू कैन सी हेयर. ऑलराइट, और इसके लिए अगर वो करती है फिर भी कंट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन करती है तो हमारा कंपनी को 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन का आपको पनिशमेंट हो सकती है कंपनी को, और फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की, और साथ ही साथ एंड लिखा हुआ है विद फाइन अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट. जो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स दिख रही है आपको, अप टू यहाँ पे 5 टाइम्स ही लिखा हुआ, वो मैं आपको चेंज करके डाल दूंगा. ऑलराइट, और यहाँ पे भी एक मिस्टेक थी छोटी सी कि यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, मैंने अभी इसको चैरिटेबल फंड्स में करके डाल दूंगा. ऑलराइट, सो सेक्शन नंबर 182 को दोबारा एक बार देखते हैं. लिमिट कोई नहीं है हमारी. कंपनीज नॉट एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट में गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, और सेकंड अ कंपनी व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट कंपनी होनी चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके आगे. और हु कैन एक्सरसाइज द पावर? ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एट द मीटिंग ओनली. लाइक इसमें आपका जो सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पर सर्कुलेशन होता है वो हमारा नहीं चलेगा. बोर्ड मीटिंग में ही हम कंट्रीब्यूट ये डिसीजन ले सकते हैं. ये हमारा प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 121 कहता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओवरराइडिंग इफेक्ट. 182 सेक्शन 1 जो है हमारा, उसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है कंपनीज एक्ट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई और सेक्शन, जैसे सेक्शन नंबर 179 में पावर्स दी गई है कंपनी को कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ये कर सकते हो आप, और सेक्शन नंबर 180 में उस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कुछ कुछ में, और सेक्शन नंबर 182 उसको ओवरराइड करता है. लेकिन और बाकी अदर कंपनीज एक्ट को भी, अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड करता है. मतलब अगर आपके मेमोरेंडम वगैरह में भी लिखा हुआ है अगर कि आप ये नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इम्पैक्ट है हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर. ऑलराइट, इसका साथ में डिस्क्लोजर भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है. इसके अंदर ये एक और चीज बोली गई है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप चाहे तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सिर्फ टोटल अमाउंट आएगा इसके अंदर. ऑलराइट, पनिशमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ. फिर नेक्स्ट एक डीमिंग फिक्शन लगा रखी है सेक्शन नंबर 182 के अंदर कि अगर कुछ एक कुछ पर्सन को अगर हम डोनेट करते हैं, जो पर्सन का काम होता है कि मतलब
उस पर्सन की जो एक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं, एक रीजनेबल माइंड ये कह सकता है कि उस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सपोर्ट गेन करेगी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगर हम एक ऐसे पर्सन को भी अगर हम वो करते हैं, डोनेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको भी हम पॉलिटिकल पार्टी का ही दर्जा देंगे। सेक्शन नंबर 92 में ये वाली बात बोल रखी है। और साथ के साथ एक और डिफिनेशन लगा रखी है कि एक्सपेंडिचर इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में भी अगर खर्चा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो वो हमारा इसी सेक्शन 92 सब सेक्शन 1 के अंदर कवर हो जाएगा। और राइट, और साथ ही साथ ये बोल रखा है कि मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है इस सेक्शन के अंदर कि अकाउंट पे ही चेक के थ्रू ही होना चाहिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज बोल रखी है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और राइट, तो ये 3-4 मोड्स से ही कर सकते हैं। अगर ये 3-4 मोड्स अगर हम फॉलो नहीं करते तो अगेन आपकी पनिशमेंट लग जाएगी। फॉर कंपनी 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर, फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर मतलब ये बोर्ड डायरेक्टर्स वगैरह ही होगा जिनको पता था, सीईओज वगैरह होगा जिनको ऑलरेडी पता था कि ये कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया और उन्होंने फिर भी गो अहेड दे दिया। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड विद फाइन अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट। यहाँ पे मैं चेंज करके डाल दूंगा। All right. So coming to next section. Before going to next section, let's go to the question answers, the examples as already given in ICI study meta also. All right. Example 9 और example 10. Two examples हैं सिर्फ इसके अंदर. The board of directors of LM Limited incorporated in April 2017 proposes to donate 50,000 rupees to a political party. 50,000 rupees कर सकते हैं donate, क्योंकि लिमिट इसके अंदर नहीं है तो हमें पैसे की कोई वो ज्यादा इसमें कोई हमारी कोई नीड नहीं होगी। To a political party for financial year 2019-20. The average net profit determined in accordance with the provisions of Companies Act during the two immediately preceding financial years are 20 lakh. इसकी भी कोई नीड नहीं है। इसकी नीड हमारी चैरिटेबल फंड्स के अंदर सेक्शन 181 के अंदर हो सकती थी, जहाँ पे हमें 5% की लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है। इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले थी, ये सेक्शन अमेंड हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो इसकी अब इसमें कोई नीड नहीं है। Advise whether the proposed donation is within the power of board of directors of the company. तो as per section number, इसका आंसर है फिर as per section number 92 subsection 1 of the Companies Act 2013, any company may contribute directly or indirectly to any political party except a government company. First point जो हमारा था ये ना, except a government company and a company which has been in existence for less than 3 financial years. ये इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी कंपनी नहीं कर सकती। अगर इस क्वेश्चन के अंदर LM लिमिटेड लिखा हुआ है, ये ना हमें गवर्नमेंट कंपनी प्रतीत हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेट हुई है अप्रैल 2017 के अंदर, और हमारा ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब दो सिर्फ 2 साल हुए हैं इसके अंदर, तो ये वाली कंपनी हमारी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। इन द गिवन केस LM लिमिटेड हैपेंस टू बी अ कंपनी व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, हेंस इट इज नॉट परमिटेड टू डोनेट एनी अमाउंट टू द कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी as we have already discussed. Next example is about Seahawk Cycles Limited is a company incorporated 4 years ago. मतलब ये हमारी एलिजिबल है, और ये गवर्नमेंट कंपनी हमें प्रतीत अगर नहीं हो रही तो वो भी एलिजिबल रहेगी। It has earned profits amounted to 5 lakh, 8 lakh and 11 lakh. इसकी हमें कोई नीड नहीं होगी। All right. During the last 3 financial years, the board of directors of the company proposes to donate a sum of 50,000 rupees to a political party. Whether the proposed donation is within the power of board of directors. इसमें सिर्फ हमें क्या नीड होगी, अब रिवाइज कर लेते साथ साथ कि 3 चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। पहली चीज, लिमिट कोई लिमिट है नहीं, खत्म बात हो गई वहां पे। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, 3 साल उसको हुए, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको इनकॉर्पोरेट हुए, वो वाली हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए एट अ मीटिंग ओनली। मीटिंग में बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन अगर पास हो गया, और जो हमारी डोनेशन होगी वो मोड ऑफ डोनेशन जो होगी वो सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू अगर हुआ होगा तो हमारा एलिजिबल हो जाएगा, वरना आगे पनिशमेंट लग सकती है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं अब एक बार। According to section number 182 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company except a government company and a company which has been in existence for not less than 3 financial years can make political contributions directly or indirectly to any political party. Further, the contribution shall be made by a company only after passing a resolution at a meeting. ये बहुत important है यार, at a meeting of the board of directors authorizing such contribution. In view of the above provisions, Seahawk Cycles Limited can contribute the said amount of rupees 50,000 to the concerned political party. However, it needs to pass a board resolution authorizing
मेकिंग ऑफ सच कंट्रीब्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये अमाउंट दे रखी है ना, जो प्रॉफिट्स कमाए 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख, ये हमारे लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। सेक्शन नंबर 181 और सेक्शन नंबर 182 के अंदर कंफ्यूज कभी मत होना। ऑलराइट, ये कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है आईसीआई का यार। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 183 के अंदर आते हैं। वो कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड्स एंड एनी अदर फंड्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना, इसमें सिर्फ बच्चे ये याद रखते हैं कि नेशनल डिफेंस फंड्स ही है। नहीं, इसके अंदर और भी फंड्स आ सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ने अप्रूव कर रखे हैं। ऑलराइट, इसके अंदर भी लिमिट कोई नहीं है। और इसके अंदर कंपनी एलिजिबल वाला पॉइंट भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। हु कैन एक्सरसाइज द पावर, इसमें आपका दो चीज आती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं एक्सरसाइज ये वाली पावर, और साथ में मेंबर्स भी कर सकते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। ऑलराइट, और इसमें भी डीमिंग फिक्शन लगती है। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। सॉरी, डीमिंग फिक्शन नहीं, सॉरी, ओवरराइडिंग इफेक्ट लगता है इसके अंदर भी। सेक्शन नंबर 183 भी आपका ओवरराइड करता है होल कंपनीज एक्ट को, मेमोरेंडम को भी, आर्टिकल्स को भी, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द कंपनी। मतलब कुछ कम, उसमें कुछ भी लिखा हो, उसमें कुछ भी लिखा हो आपका। एक सेकेंड भाई, या तो कुछ भी लिखा हो उसमें, कोई इशू नहीं होएगा उसके अंदर। ऑलराइट, तो सेक्शन नंबर 183 का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मतलब आपके मेमोरेंडम वगैरह में भी अगर आपको मना कर रखा हो उन्होंने कि मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फिर भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। डिस्क्लोजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर आपका टोटल अमाउंट का भी जाएगा डिस्क्लोजर, और साथ में फंड का नाम भी जाएगा। अगर आपने नेशनल डिफेंस फंड पे किया, या फिर प्राइम मिनिस्टर की कोई योजना वगैरह के में भी कर रखा है अगर आपने, तो उसका नाम जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसमें पनिशमेंट कोई भी मेंशन नहीं है, डीमिंग फिक्शन कोई मेंशन नहीं है, और मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन भी मेंशन नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ये हमारा सेक्शन नंबर 181 से 183 कवर करता है। हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया आई गेस, और इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको आप टेबल से कंपैरेटिवली रिवाइज करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 181 कहता है 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स। और सेक्शन नंबर 182 में कोई लिमिट नहीं है, 183 में कोई लिमिट नहीं है। और साथ में 5% से अगर ऊपर जाता है, थ्री इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट क्या कर रहे हैं हम, ऊपर जाते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। इसको मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन है या फिर आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। इसका मैं एक बार कंफर्म करके जरूर बताऊंगा, कमेंट्स के अंदर बता दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, और कंपनी नॉट एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वाले में है कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, और कंपनी विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर। इसमें सिर्फ यही वाला पॉइंट इस यहाँ पे आएगा, बाकी दोनों में कुछ ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ओके, हु कैन एक्सरसाइज द पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 181 में कर सकते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऑल राइट, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, और जनरल मीटिंग में भी कर सकते हैं, साथ में मेंबर्स भी कर सकते हैं मतलब। ऑलराइट, और ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करें तो 182 के पास भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 183 के पास भी है। ओके, डिस्क्लोजर में सिर्फ 182 183 के अंदर देंगे, 182 में सिर्फ अमाउंट देनी है, पार्टी का नाम दो या ना दो नहीं बनता कुछ भी, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसमें अमाउंट भी देनी है, और साथ में फंड का नाम भी देना है। पनिशमेंट सिर्फ इसके अंदर मेंशन है सेक्शन 182 के अंदर। और डेमिंग फिक्शन सिर्फ 182 के अंदर लग रखी है कि अगर आप किसी पर्सन को कंट्रीब्यूट करते हो जो ऐसा कुछ काम कर रहा होता है कि वो पब्लिक सपोर्ट उसको मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो वाला कोई काम करता है उसको, अगर आप डोनेट करते हो या फिर कंट्रीब्यूट करते हो कुछ पैसे, तो उसका भी आपका माना जाएगा कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करी है। और एक्सपेंडिचर इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एडवर्टीजमेंट में भी अगर करते हो तभी भी डिफिक्शन लग जाएगी आपकी। और मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन भी सिर्फ सेक्शन 182 के अंदर है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और इलेक्टोरल ट्रस्ट। बस ये चार आपके हो जाएंगे, बाकी दोनों एग्जांपल्स हैं। ये इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि ये आप फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। All right. So for further videos, you can subscribe our channel. You can consider subscribing our channel, Commerce Edu Club. And this is Akshay Nagpal signing off. Thank you.